Welcome to all students who are studying through this concept and enjoying. The topic is coordinate geometry, and we study about the introduction. Not only this class, this will make you helpful in class after 9th. This will make you comfortable in class 10th, 11th, 12th. So first we know that the coordinate geometry is a branch of mathematics. But who published, by whom it was published, and why do need to study coordinate geometry? Suppose this is a Cartesian plane. This is a Cartesian plane. Why it is called Cartesian plane? Because this coordinate geometry was discovered by René Descartes, a French mathematician. French mathematician and philosopher René Descartes, and he published in the book Law Geometry in 1637. To know the position of a point in a plane, just he draw two axes perpendicular to one another. There is no boundary of the plane, as you know, and one is horizontal. It is called x-axis, horizontal Cartesian axis, and this is vertical axis, y-axis, y and y dash, and where these two axes intersect, it is origin. O is origin. X O X dash, x-axis, and Y O Y dash, y-axis. So to know the position of any point, suppose P be a point, and a point is represented by a pair of coordinate. An ordered pair, you can say, an ordered pair of real numbers. Okay, represents the point. Suppose point P
and AB with the ordered pair. This AB is the ordered pair. Ordered pair is written in this form. This is representation of ordered pair. Ordered pair in which a point is represented in Cartesian form. In Cartesian coordinate form. You know the first member. It is the first member. First member is called abscissa. And it is the second member. Is called ordinate. We have to know the location of the point we draw from P. What is abscissa? So from P draw a perpendicular to x-axis. Here is x dash. Here is y dash. Here is the point of intersection of x dash and y dash. This part of x is positive plus BE. This part is minus BE. This part is plus BE. And this part is minus BE. These four parts called quadrants. It is first quadrant. It is second quadrant. It is third quadrant. It is fourth quadrant. And this position, this distance is A. And this distance, height, not distance, it is height, B. B is the perpendicular distance from x-axis. So here we write about abscissa and ordinate. Abscissa means the perpendicular distance, of a point from y-axis and parallel to x-axis. Here is this one, from y-axis, that means this A. This is A. Okay? A. And ordinate the perpendicular distance, from a point
of a point, not from, of a point from x-axis and parallel to y-axis is called ordinate. Is called ordinate. So here are 4 quadrants, and you must know the Cartesian plane. That means this plane that is divided by 2 perpendicular lines. One is horizontal, another is vertical, and the Cartesian plane divided into 4 parts, and these 4 parts are called quadrants. And the point, this point P is called Cartesian point, and x dash and y dash called Cartesian axis, and the coordinate, that means combination of abscissa. This is abscissa, this is abscissa, and this is ordinate. So here the combination of abscissa and ordinate in ordered pair, okay, is called coordinate of the point. So here we have study and the needs of the study of the coordinate geometry. That means we have to locate a point, we have to know the position of a point, okay, and such geometry in which we study about the location of the point, about the position of the point, called coordinate geometry. आगे हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये 2 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ओरिजिन। अब देखिए एक्स डैश जो है वह एक्स एक्सिस कहलाता है, वाई डैश वाई एक्सिस कहलाता है, और यहाँ पर आप पॉजिटिव और निगेटिव की बात करो। सबसे पहला है कि एक्स ओ वाई, 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं? 4 क्वाड्रेंट्स एक्स ओ एक्स डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया। फिर एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाया। एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाया। और वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाया। अब इनमें जो साइन है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 बट y ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए ये सेकेंड, ये फर्स्ट,
इसलिए प्लस 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 प्लस, यानी x जो है वो 0 से ज़्यादा, y 0 से पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव और लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। और यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव, x लेस देन 0, y लेस देन 0। एंड ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। ये जानकारी रखना पड़ेगा। कुछ और जानकारियाँ, OX ये है पॉजिटिव x एक्सिस और OX डैश नेगेटिव x एक्सिस, OY पॉजिटिव y एक्सिस, OY डैश नेगेटिव y एक्सिस। एक चीज़ और है कि कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी डिफाइन कर दिया जाए। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals about the geometry through study of अलजेब्रा। यानी ये ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं अलजेब्रा की मदद से। विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा हम ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं। अब है कि प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट का प्लॉटिंग कैसे करेंगे। हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स अगर x एक्सिस पर है, x एक्सिस पॉइंट है कोई, तो इनको x0 यानी इनके ऑर्डिनेट अवश्य ही 0 होंगे, ऑर्डिनेट जो हैं वो 0 होंगे। y एक्सिस पर के अगर कोई पॉइंट है तो 0y यानी इनके एब्सिसा अवश्य ही 0 होंगे, एब्सिसा 0 होंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगर कोई पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोई पॉइंट हैं तो इनके प्लस भी ई। सेकेंड क्वाड्रेंट के कोई पॉइंट हैं तो माइनस भी और ये प्लस भी ई। थर्ड क्वाड्रेंट के अगर कोई पॉइंट होंगे तो दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो पॉइंट होंगे इसमें होंगे x प्लस एंड y माइनस। अब देखिए मिरर इमेज की बात करें हम लोग। मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट, उससे पहले प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, कुछ पॉइंट के प्लॉटिंग। पॉइंट्स हमारे पास में हैं, पॉइंट्स इनको प्लॉट करना है। ये हैं हमारे पास 2 1 -3 2 4 3 -3 2 2 0 0 5 -3 0
0 -2। ये पॉइंट्स है, इनको प्लॉट करना है, ये प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स। तो इसका ध्यान रखते हैं हम। सबसे पहले तो जो इसको मान लेते हैं कि ये एक इंटीजर लाइंस है, तो इस पर इंटीजर रिमेंबर इट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिस्टेंस पर, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से हम इधर भी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ भी नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग, तो देखिए इनके एब्सिसा 2 हैं, तो एब्सिसा 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ऑर्डिनेट 1 है, तो दैट मीन्स 1 पर एक, मतलब वाई एक्सिस के 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये सपोज कीजिए इनके नाम भी रख लेते हैं, ये ए अल्फ़ाबेट लेटर, बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमने ए को प्लॉट कर दिया 2 1 को, ये ए लिख दिया, ये 2 1 लिख दिया। दूसरा है -3 2, तो हमारे पास में -3 पर परपेंडिकुलर और 2 पर परपेंडिकुलर, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया ये बी हो गया, इसे हम -3 2 के कोऑर्डिनेट के रूप में जानेंगे। 4 3, तो 4 पर परपेंडिकुलर डालेंगे और 3 पर, पॉजिटिव से 3 और पॉजिटिव से 4, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सी 4 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा ये भी पता चल जाएगा कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, -3 2 यानी ये 2 बार, ये भी डी भी हो गया, तो दोबारा आ गया, बी और डी सेम है। 2 0 मीन्स जिनके ऑर्डिनेट 0 हैं वो किस पर आएंगे, एक्स एक्सिस पर आएंगे। ये देखिए ये 2 0, ये हो गया ई। जिनके ऑर्डिनेट 0 वो ऑर्डिनेट 0, तो ये आएंगे किस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर आएंगे। और जिनके एब्सिसा 0 तो ये आएंगे वाई एक्सिस पर। कहाँ आएंगे, एब्सिसा 0 मीन्स वाई एक्सिस पर आएंगे। सो दिस ऑल थिंग्स टू बी लर्न। अब हमारे पास 0 5 है, इनके एब्सिसा 0 ये वाई एक्सिस पर आएंगे, वाई एक्सिस पर यहाँ पे आएंगे, ये हो गया आपके एफ। इनके एब्सिसा 0 5 -3 0 -3 ये रहा -3 0। इनके क्या है, ऑर्डिनेट 0 हैं, तो ये एक्स एक्सिस पर आएंगे, ये -3 0 और जी, ये रहा जी 0 2। इनके एब्सिसा 0 0 -2, दैट मीन्स -2 इज हियर, ये रहा 0 -2, दैट मीन्स ये एच हो गया। तो सारे पॉइंट्स का किस तरह से प्लॉट होता है ये हमने बताया। अब एक मिरर इमेज देखिए, मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट, इसको इस प्लेस पर मैं शो करता हूँ। ये है वाई एक्सिस
और ये है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। सपोज कि हमने वाई एक्सिस को मिरर मान लिया और हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा यह 2, 3 होगा। अब इनके मिरर इमेज हमने गलत डायरेक्शन में लिया, ये इधर होना है, इस तरफ से देखना है, इस पॉइंट को यहाँ से देखना है। जैसे ये मान लीजिए -3, ये -2 ले लिया और ये 3, ये रहा, ठीक है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, देख रहे हैं आप। और वाई कोऑर्डिनेट अगर ये 3 है तो 3 हो जाएगा। अब जब हम इसको मिरर मान करके देखेंगे तो इनके जो इमेज बनेंगे, ठीक जितना ये आगे है उतना ही पीछे जाएगा। दैट मीन्स अगर ये 2 है तो ये 2 पीछे जाएगा, यानी y का हाइट इसमें नहीं बदलेगा, y सेम रहेगा, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा। y सेम रहेगा बट ये पॉजिटिव। तो क्या देखा आपने, अब देखिए कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस इनके देखिए मिरर इमेज, तब जब आपका y एक्सिस मिरर है, y एक्सिस एज मिरर, तो हमने क्या देखा कि अगर ये प्लस है तो y तो उनका प्लस ही रहेगा, बट ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है तो इनका y तो प्लस ही रहेगा, बट x क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस हो जाएगा। इस तरह से अगर y एक्सिस है और ये आप देखिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमने कोई ले लिया, ये हमने ले लिया 2 ही है, -2 ही है और ये -5, देखिए ये -5, तो क्या आएगा, हाइट तो सेम ही आएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 5। आपने इसका मिरर इमेज क्या देखा कि -2 - 5 का, दैट मीन्स कि माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस। आप यह ध्यान रखते चलिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है, ये कोई भी क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मिरर इमेज में किस तरह से साइन का चेंजिंग होता है। अगर y एक्सिस लेते हैं, ध्यान रखना है कि अगर y एक्सिस एज मिरर, y एक्सिस एज मिरर, then which coordinate changes, x coordinate changes, x coordinate net changes their sign, learn it. And if x coordinate, x axis, if x axis as mirror, then just reverse, y coordinate changes their sign, just you see, suppose कि हमने
ये ले लिया, तो यहाँ पर हमने 2 3 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स हाइट तो सेम ही रहेगा, बट देखिए ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना 9th का सिलेबस है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, और इन सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स को बनाने में दिक्कतें नहीं आएगी। बावजूद इसके अगर आपको किसी तरह का जो कंसेप्ट समझने में कहीं से भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको भरपूर हेल्प करने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।